Welcome back to your English class, everyone. In today's class, we are going to see the new chapter, Weathering the Storm in Ersima. In this chapter, we will see about the storm that occurred in this region, Ersima. This story is written by Harsh Mander. What is the story written by whom? Harsh Mander. Now, what is the importance of this story? In this story, there's a boy who helped his whole village to rescue from this storm. And this story is very inspirational, and that is why included in your syllabus. Before entering into the story, let us see where is this place located. This place is located near Cuttack. Near Cuttack, this place is located near the Bay of Bengal. Now, if this is the location of the place, if there are high tides or any sort of storm, it will directly rush to this place and this place will be washed as a whole. And that is what happened in this place, Ersima. Let us move forward. This was the storm. Have you ever seen or witnessed a storm? No, you might not have, because we here did not ever had such storm. बट फिर भी थोड़ी बहुत आंधी तूफान से ही काफ़ी डरावना हो जाता है सब कुछ. बट हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज वॉश्ड ऑफ. ट्रीज are fallen down, buildings, people are sitting over here somewhere, and this is what happened with this village long time ago. Everything was washed off, everything had fallen. People were going from place to place to rescue their lives, their everything. And here this child who has already lost his mother was very much worried whether he'll be having all his family safe and secure or not. And when he finds his family, what happens in the story? He rescues the whole village. He makes plans and builds shelters to rescue all of his village. Let us start our story. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For two dreadful nights, Prashant, who was Prashant? He was a young man from this young man who was marooned on the roof of a house, who was placed at the roof of a house. And on the third day of the cyclone, he started moving to go to his own village. Now we will find out in the story, did he find his family or his family was washed in the cyclone? What was the reaction of Prashant? Let us see. On October 27, 1999. So what was the date? 27th October 1999. 7 years after his mother's death. So his mother died 7 years before 1999. That might be 1992. Prashant had gone to the block headquarters of Ersima. Block headquarters he went. A small town it was of Orissa. Some 18 kilometers away from his village he went. Why did he go? He just wanted to spend a day with his friend. Okay, but what happened? In the evening, a storm quickly gathered. A quick storm occurred over there. Winds beat the houses with speed and fury. Fury means anger. That Prashant had never witnessed before. Prashant haven't seen all this before. Heavy and incessant. What do you mean by incessant? Incessant means unstoppable rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted. जो पुराने पेड़ हो गए थे. And crashed to the earth. Screams rent the air as people and the houses were swiftly washed away. Scream मतलब चिल्लाहट मच गई थी. सब चिल्ला रहे थे बहुत तेजी से. ठीक है. द एंग्री वाटर swirled in मतलब ऐसे इमोशन, swirling मोशन से वो अंदर चला गया उनके फ्रेंड के भी हाउस. और अब वो नेक डीप तक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ह्यूमन बीइंग, तो उनके नेक तक पानी आ गया था. अब तो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन होती जा रही थी. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार. तो बिल्डिंग जो थी वो ब्रिक से बनी हुई थी, तो इसके लिए वो बिल्डिंग जो है टूटी नहीं, अदरवाइज जो बिल्डिंग है वो भी ढह जाती, तो वो बची हुई थी. एंड इट
it was strong enough to survive the wind speed of 350 kilometers per hour. 350 kilometers per hour की स्पीड झेलने को तैयार थी, बट फिर भी मिडिल ऑफ द नाइट तक स्टॉर्म इतना ज़्यादा था कि रूफ और वॉल काफ़ी कुछ डैमेज हो गया था। ठीक है, जो क्रेज़ी डिस्ट्रक्शन आया था उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अगले 36 आवर्स तक नुकसान होता रहा, पर धीरे धीरे 36 आवर्स बाद जो है विंड स्पीड रिड्यूस हुई, मतलब 1.5 दिन बाद 24 घंटे और 12 घंटे और उसके बाद विंड स्पीड रिड्यूस हुई और धीरे धीरे जो पानी था जो घर में भरा हुआ था उससे एस्केप करने के लिए वो लोग कहाँ रेफ्यूज ले लिए, वो लोग जाकर शरण लेना, रेफ्यूज लेना मतलब रूफ टॉप पे, ये देखिए रेफ्यूज ऑन द रूफ। प्रशांत कहते हैं कि नरेटर कहते हैं कि प्रशांत ये जो हुआ था वो इंसिडेंट कभी नहीं भूलेंगे। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, और जब वो सुबह हुई और वो लोग देखते हैं जो दूर दूर तक जहाँ तक उनकी आंखें देख सकती थी वहाँ पर कहीं पर भी खुशी नहीं थी। सब लोग ब्राउन शीट कीचड़ भरे पानी से पूरा एरिया जो है वो भरा हुआ था। ब्लॉटेड एनिमल कार्कसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्स, फूले हुए एनिमल की डेड बॉडीज़, ह्यूमन की डेड बॉडी सब जगह हर डायरेक्शन में थी। जो बड़े बड़े ट्रीज़ थे वो गिर गए थे। कोकोनट ट्रीज़ जो है वो इनके भी घर पे गिर गए थे, पर वो एक तरह से फ़ायदा कर गया क्योंकि कई दिन से भूखे रहने से अच्छा था उन वहाँ से पेड़ से तोड़ के वो लोग टेंडर कोकोनट खा लिए थे। ठीक है, अगले 2 दिन तक वो वहीं पर उनकी फैमिली के साथ पड़ा हुआ था। प्रशांत के जो आंसू भी थे अब क्या हो गए थे, फ्रीज हो गए थे, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। 2 दिन बाद जो कि प्रशांत को 2 साल की तरह लगे, रेन जो है वो सीज हुई और प्रशांत बिना कुछ सोचे समझे जाने का डिसाइड कर लिए। उनके फैमिली वालों ने मना किया कि अभी भी डेंजरस है, बट ही डिड नॉट वेट, और एक लॉन्ग स्टिक लेकर 18 किलोमीटर की एक्सपीडिशन अपने वापस विलेज जाने को तय करने को तैयार हो गए। और स्टिक से टच करके वो रोड लोकेट कर रहे थे, वरना तो इतना पानी था नेक तक कि रोड भी कहाँ थी पता नहीं, डायरेक्शन भी कुछ ज़्यादा तो पता नहीं चल रही थी। बट कुछ दूर बाद किस्मत ने उनका साथ दिया। क्यों? क्योंकि प्रशांत के अंकल के कुछ फ्रेंड्स मिल गए जो वापस विलेज जा रहे थे और फिर प्रशांत उनके साथ जो है वापस जाने लगा। As they waded through the water, the scenes witnessed more and more macabre, और ज़्यादा men, women, children सबकी डेड बॉडीज़ थी, डॉग, गोट, कैटल, और ये लोग को वो सब स्टिक से हटा के जाना पड़ रहा था। इमेजिन एज अ कैटास्ट्रॉफी आपको जो है डेड बॉडीज़ के बीच में जाना पड़े। खैर, अब प्रशांत पहुंच गए थे अपने विलेज कालीकुडा। उनका हार्ट जो है वो अब और ज़्यादा ठंडा पड़ने लगा और ज़्यादा दुखी होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि अब उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जब मैं देखूंगा कि मुझे मेरी फैमिली नहीं मिली है तो मुझे और ज़्यादा जो है दुख होने लगेगा। तो प्रशांत इसी डर से आगे बढ़ते हैं अपनी फैमिली को ढूंढने। अब वहाँ सब तो उनकी जो बिलोंगिंग्स थी वो दिखी, जिससे और ज़्यादा वो क्या हो गया, टेंशन में आ गया। तो प्रशांत ने डिसाइड किया रेड क्रॉस शेल्टर जाने का, जहाँ पर सारी फैमिलीज प्लेस की गई थी। ठीक है, और उस क्राउड में सबसे पहला जो इंसान प्रशांत को दिखा वो उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर थी, मतलब नानी दिख गई मम्मी की जगह। वो सच अ साई ऑफ रिलीफ, और उनकी आंखों में पानी भरा और वो भाग के गए और उनके पास, और अब उनको धीरे धीरे पता चला कि उनकी फैमिली भी जो हो सकती है वहाँ पे, और क्विकली वर्ड्स स्प्रेड हो गए, मतलब एक दूसरे तक खबर पहुँच गई और प्रशांत के पास सब लोग पहुँच गए। प्रशांत सबको देखा, द मॉटली, द बैटर्ड ग्रुप, हिज ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट सब थे वहाँ पर। अगली सुबह तक वो जो डेस्परेट सिचुएशन थी उसको देखते रहे शेल्टर में। कैसे? एक डेथली ग्रीव था वहाँ पे, जहाँ पे 2500 लोगों का क्राउड था। ठीक है, 86 लोग जिसमें से उनके विलेज से मर चुके थे। ठीक है, टोटल 96 हाउसेस सब वॉश अवे हो चुके थे। सो फार दे सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट, और अब तक तो ग्रीन कोकोनट पे वो लोग सर्वाइव, पर ये ग्रीन कोकोनट इतने बड़े ट्यूमुल्ट ऑफ पीपल, इतने बड़े क्राउड ऑफ पीपल के लिए अब बहुत ही कम बचा था। प्रशांत जो कि सिर्फ 19 साल के थे, 19 ईयर ओल्ड थे, उन्होंने डिसाइड किया, एक यूथ और एल्डर्स का ग्रुप बनाया जॉइंटली, और राइस वगैरह जो है वो सर्कुलेट करवाने लगे।
ठीक है। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, और वो मर्चेंट से राइस मंगवा लिए, इनका जो ग्रुप था वो सक्सीड हो गया, ठीक है। बट राइस जो है वो ऑलरेडी क्या था, सड़ रहा था, बट किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब लोग जो है अपना पेट भर लिए। अब अगला टास्क था कि ऐसे वॉलंटियर्स को खोजें जो फिल्थ, वहीं पर लोग बैठे हैं, वहीं पर मतलब सब कुछ, यूरिनेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग वाज अकरिंग देयर, और लोगों के घाव भी थे, फ्रैक्चर्स थे जिस पे दवा नहीं लगाई गई थी, तो इन्फेक्शन के चांसेस और डेथ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए थे। 5th डे उन्होंने देखा कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लाई हो रहा है, तो क्या हुआ, यूथ टास्क फोर्स ने डिसाइड किया कि जितना खाली बर्तन है वो क्या करेंगे, पेट पे रखकर बच्चों को लिटा देंगे, जिससे जो वो प्लेन जा रही है वो ऊपर से देख पाए कि खाली प्लेटें बच्चों के पेट पे रखी है, मतलब ये एक तरह का साइन हो जाता है कि बच्चे भूखे हैं। और ये काम भी कर गया, कम्युनिकेशन जो है पहुंच गई है। फिर हेलीकॉप्टर से रेगुलर राउंड आता था और एयर ड्रॉपिंग ऑफ फूड और अदर बेसिक नीड हो जाता था। प्रशांत ने बहुत सारे बच्चों को अनाथ पाया और उसने एक पॉलीथीन शीट का शेल्टर बनाया उनके लिए। विमेन जो कि अब खाली थी, जिनके घर में कोई नहीं बचा था, वो उनका ख्याल रखने के लिए भेजी गई, और जो मेन थे वो फूड और शेल्टर का इंतज़ाम कर रहे थे। हफ्ते निकल गए, अब सब दुखी होते जा रहे थे, धीरे धीरे अपने दुख में और ज़्यादा गहराई से सोचते जा रहे थे कि कितने ने किसको किसको खोया। तो उन्होंने एक NGO शुरू किया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए। जिसको क्रिकेट पसंद था क्रिकेट खेलते, बाकी लोग वॉलंटियर बनते। जो विडोज़ थी, जिनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा था, और वो जो बच्चे थे जो ऑर्फन्स थे, उनके लिए क्या किया, एक और स्टेप लिया और एक इंस्टीट्यूशन बनाया जहाँ पर चिल्ड्रन जो विदाउट लव ऑफ मदर हैं और विडोज़ जो हैं वो लोनलीनेस के स्टिग्मा से सफ़र करेंगे, वो एक साथ रह सकती थी। प्रशांत के ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर कम्युनिटी इफ़ पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज़, जहाँ पर चाइल्डलेस विडोज़ और चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर वाली जो फैमिली है, मतलब बिना बच्चों की माएँ हैं और बिना माओ के बच्चे हैं, जहाँ पर सेटल किए जा सकते हैं, फॉस्टर फैमिली, एक नकली फैमिली बना के। और ये 6 महीना हो चुका था डिवास्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन, और इस टाइम प्रशांत का जो वुंडेड स्पिरिट है उससे सब लोग हील हो गए। उसको तो टाइम ही नहीं मिला अपने पेन के बारे में सोचने का। हिज हैंडसम यूजफुल फेस इज व्हाट विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रंस ऑफ हिज विलेज सीक आउट इन देयर डार्केस्ट आवर्स ऑफ ग्रीफ। और जब उनको सबसे ज़्यादा दुख होता है तो किसका चेहरा याद आता है, प्रशांत का याद आता है। तो ये था इस यंग बॉय ऑफ 19 ईयर्स ओल्ड जिसने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया, इतने सारे लोगों को सेटल किया, इतने सारे लोगों की लाइफ बचाई। सो यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन योर syllabus. That's all for this. I hope it was helpful in learning a moral lesson. That's all for this video. Thank you. Have a good day.